खिदमत पेश है गुड मॉर्निंग J&K। صبح بخیر ناظرین السلام علیکم پروگرام گڈ مارننگ J&K کس نشستس مز تہ سارنی وچھن والن استقبال تو خیر مقدم وچ ونجہ ٹیم گڈ مارننگ J&K کی طرف ساری تعریف ساری حمد تس خدا یکتاس یس حقیقی مشکل کشا تو گرہ کشا تو یہ دعا کروس یت معاملس مز یمس کھانا گنڈ یا مشکل تس ٲسِن سہ گنڈ ینس مژرن تو حل کل مشکل ٲسِن اس سارنی معاملس مز نصیبس آمین یا رب العالمین ناظرین آز 1 جنوری 2015 تو تقریباً نصب اس یہ چلے کلان یہ گو ادا پتمو یم باران شین تمہ سۭتۍ گٔے یہ فرق کہ اس وۄنۍ آسمان نب یس تتھ سہ شِٹھنیار سہ ژوٚل یس دۄہس سہ ونل آسان یا گٹ آسان سۄ تہِ ژٔج آفتاب وۄنۍ نُمایاں راتس ژٔندٕر تہٕ تارک بوزنہٕ یِوان صبح تہٕ شام ذرا صاف آسان مگر روشن آسنس سۭتۍ سۭتۍ صبح شدید سرد تہِ آسان أزکِس یتھ سرد تہٕ روشن صبحس منٛز روشن خیال ہٮ۪تھ تُہنٛدِس من پسنٛد پروگرامس منٛز یتھ ناو چھُ گڈ مارننگ J&K أسۍ زٕ میزبان بہٕ نیاز بٹ تہٕ مےٚ سۭتۍ میون روشن خیال بوے عرفان السلام علیکم ٹھیک الحمدللہ اتھ آز گرم باسان آج تیٖژاہ ٹھنڈی تہِ باسان یہ دیت مےٚ اتھن صحیح رگڑ پانوے ویسے مائنس برابری بالکل تو پھش دیدی آئی نا -12 پٮ۪ٹھ وٲتۍ أسۍ وۄنۍ -7 تام تہٕ مےٚ چھُ باسان انشاءاللہ انشاءاللہ آسہِ رُتُے تہٕ بہتر گوٚو موسمٕے ونو أسۍ گۄڈٕ بالکل صحیح کتھ ناظریٖن تۄہہِ تہِ سانہِ طرفہٕ وتھِ وۄنۍ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یِتھ کٔنۍ نیاز صٲبن حکم تہٕ پروگرامُک فارمیٹ أسۍ کرو گۄڈٕ ٹریفکٕکۍ حوالے کا سری نگر جموں قومی شاہراہ پہ آج لائٹ موٹر وہیکلس اور ہیوی موٹر وہیکلس کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی وہی SSG روڈ آج ڈیو ٹو ریپیئرنگ اور جو موسم خراب تھا سنو ایکومولیشن کی وجہ سے بند پڑا ہے مغل روڈ بھی آج گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے بند پڑا ہے لیکن آپ سے یہی گزارش حالانکہ ٹریفک ایڈوائزری تھی نیاز صاحب آمت SSP ٹریفک طرف کہ خصوصاً تھو تھی احتیاط یم چیزوں کی SSG روڈ سری نگر سونمرگ گمری روڈ ات پہ کرو تھی ٹریول کہین یہ ٹورسٹن خطر تہ ہدایت جو بھی ہمارے ٹورسٹ حضرات یہاں پہ آج ہے رکے ہوئے ہیں ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ آپ بھی اس روڈ پہ آج ٹریول نہ کریں اگلے 3 دن یہ روڈ بند رہے گا ٹھیک لیکن اور آپ سے یہی گزارش کہ رخت سفر باندھنے سے پہلے اگر آپ نے ٹریول کرنا ہوگا پلان کیا ہے کہ ٹریول کرنے کا تو جو اسکرال ہو رہا ہے ہمارے اسکرین پہ ٹریفک کنٹرول یونٹ کے نمبرات ان پہ آپ ایک بار ضرور رابطہ قائم کریں موسم کا جہاں تک سوال ہے سری نگر کا آج منیمم ٹیمپریچر -7 اور میکسیمم ٹیمپریچر 3 ڈگری وہی جموں کا آج منیمم ٹیمپریچر 8 ڈگری اور میکسیمم ٹیمپریچر 15 ڈگری سیلسیس کے آس پاس بنا رہے گا نیاز صاحب رات ونان فونس پہ کہ جم وشنیر ریسنٹلی تور نبر گمت مگر اس باسے پنجابس تو دہلی مز تور مگر جم باسے کمپیریٹولی وشنیر چلو وۄنۍ تۄہہِ ؤنِو یہِ سڑکن ہٕنٛز خبر ییٚمِس ترُن آسہِ سُہ کرِ احتیاط تہٕ واتہِ ناظریٖن پروگرام پکناوو برونٛہہ تہٕ عرفان صٲب کینٛہہ گُزشتہٕ کینٛہہ پروگرام دۄہ برونٛہہ گوٚو أکِس پروگرامس منٛز کوٚر مےٚ ناظریٖن تۄہہِ سۭتۍ اکھ حظ فہرست شیر
ییٚمہِ فِرِستُک عنوان اوس کٔشیٖرِ منٛز کَتیُک کیٛاہ چھُ مشہوٗر تہٕ میٛٲنۍ کٔمۍ تام بٲے کوٚر سُہ اِنٹرنیٹَس پٮ۪ٹھ شِیر تہٕ واریاہو لوٗکو کوٚر اکھ أکِس سۭتۍ سُہ شِیر مگر سۭتی کٔرٕکھ یہِ چاہت ظٲہِر تَتہِ زِ تۄہہِ حظ چھُ واریاہ علاقہٕ تَمہِ منٛز ترٛٲومٕتۍ اِسلیے تٔتھۍ فِرِستَس بٔرژَر کرنہٕ موٗجوٗب چھُ مےٚ عرفان بیٚیہِ اَتھ اکھ فِرِستہٕ بنوومُت یُس مےٚ معلوٗم چھُ میٛانہِ معلوٗماتہٕ حِسابہٕ عنوان روزِ تی زِ کٔشیٖرِ منٛز کَتیُک کیٛاہ چھُ مشہوٗر تہٕ مگر حِصہٕ دوٚیِم کاوڈاریُک ہاکھ اِسلام آبادُک گبہٕ اننت ناگ مٹنُک منٛدر لیٚتہٕ پورُک گٮ۪و بڈگامچہِ وٕڈرٕ کانہِ ہامِکۍ شال تہٕ اوٗڈی ہٕنٛدۍ ڈوٗنۍ بٔدرٕوہٕچہِ رازما یجبیارٕکۍ کُلچہِ گُلمرگہِ ہٕنٛدۍ گُرۍ وٲلۍ سۄنہٕ مرگہِ ہٕنٛزِ شِنہٕ مانہِ پُلوامیُک دۄد تہٕ راج پورِچ شِرمال ٲلۍ کٔدلُک ۂرسہٕ خیامچہِ تُجہِ بُہرِ کٔدلٕچ کُلفی بلواڑُک مکاے پویِنٹ گُپکارُک تعمیٖر پربتٕچ توف وٲرِس خانُن چاہ کرٛیٖرٕکۍ کُلچہِ پرہاس پورِک کنہِ شاٹ لداخچہِ گۄگجہِ خوٗنی نالچہِ پسہِ اوٗنتۍ پورچہِ پانڈو لرِ وۄرمُلُک کاندر تیلہٕ بلُک نالہٕ کۄپواریُک آنچار کلاروٗسٕچ گۄپھ توسہٕ مٲدانٕکۍ مٲدان کُدِ ہٕنٛز مِٹھٲے شیطان نالُک ہوا دارۭچ گُنس پلہٕ ہالنُک بتہٕ جِن پکھر پورِک ہۄکھر بابہٕ ڈیمُک مُشُک سوپورٕچ رب ریڈٕ تہٕ رۄپیہِ ناظریٖن یہِ چھُ محض اَوٕ موٗجوٗب کہِ سٲنِس یادا وترِس لگہِ ذرا پھیُر پہمتھ تہٕ کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ کَتِکۍ کیٛاہ چھُ مشہوٗر اَمہِ سۭتۍ چھُ اَسہِ یہِ تہِ تران فِکرِ کہِ سون یُس یہِ میٖراث چھُ یہِ کوٗتاہ مۄلُل تہٕ یہِ کوٗتاہ رِچ چھُ اوسمُت تہٕ بیٚیہِ اَسہِ کینٛہہ ہاوُن لایق چھُ اوسمُت ہر علاقس منٛز تہٕ وۄنۍ یتھ منٛز سٮ۪ٹھاہ کٔمی گٔے وۄنۍ چھُ وٕچھان کہِ وۄنۍ چھُنہٕ خاص کُنہِ جایُک کینٛہہ مشہوٗرا تیوٗت کینٛہہ یہِ تہِ وۄنۍ مشہوٗر چھُ سُہ چھُ نیٚبرٕ پٮ۪ٹھٕے یور یِوان تہٕ یُس سون ٹرٛیڈ چھُ تہٕ سُہ گوٚو واریاہ کم یِم سٲنۍ وسٲیل چھِ أسۍ خۄد کٔفیٖل ٲسۍ سُہ چھُ واریاہس حدس تام کم گوٚمُت یہِ چھُنہٕ یُتُے یوت نِیاز صٲب یُس تۄہہِ یہِ ووٚنوٕ یِم چیٖز کَتہِ کیٛاہ چھُ مشہوٗر اکھ چھُ اَمہِ تل تران فِکرِ کہِ سٲنۍ گُزٲرِش ییٚمہِ پروگرام کہِ ذٔریعہٕ یِہے آسان کیٛازِ یُس یہِ پروگرام چھُنہ یتھ چھُ تُہۍ سکرال وٕچھان یتھ چھِ آسان بۄن کَنۍ کھسان کہِ ییٚمہِ پروگرامٕچ کوٗشِش چھِ آسان کہِ أسۍ کرو پنُن کلچر پرٛزٲرٕو کلچر پننٮ۪ن شُرٮ۪ن پننٮ۪ن یِمن نونِہالن پاوو یاد کہِ سون پوت کال کیُتھ اوس تابناک أسۍ ٲسۍ بالکُل خود کفیٖل واریاہن چیٖزن منٛز مگر بدقٕسمتی سان یِتھ کٔنۍ تُہۍ ووٚنوٕ کہِ وۄنۍ چھِنہٕ شاید کٔشیٖر یِمو چیٖزو سۭتۍ مشہوٗر کینٛہہ مگر اکھ چیٖز یتھ نہٕ کانٛہہ انکار ہیٚکہِ کٔرِتھ ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ کٔشیٖر وٕنکیٚس نہ صرف ہندوستان کٮ۪ن باقین حِصن منٛز بٔلکہِ پوٗرٕ دُنیاہس منٛز مشہوٗر چھُ سۄ گٔے کٲشِر ہٕنٛز ہاسپِٹیلٹی میزبٲنی سٲنۍ یتھ ییٚمِچ بٔڑ زنٛدٕ مثال تُہۍ ریٖسنٹلی وٕچھِو ییٚمہِ دۄہ گۄڈنیُک یُس سنو فال اوترٕ گوٚو تۄہہِ وٕچھِو کہِ بہٕ کرٕ خصوٗصن مےٚ چھُ فخر کہِ سون تعلُق تہِ چھُ تٔتھۍ ایریاہس سۭتۍ بہٕ کرٕ سۄنہٕ مرگ ایریاہٕچ کتھ سُہ گوٚو یہِ زِ ییٚمہِ ساتہٕ سنو ایکیوملیشن گٔے اچانک ان ایکسپیکٹڈ گوٚو تتھ منٛز پھسے ٹیوٗرِسٹٕس واریاہ مگر سٲنۍ لُکھ درٛاے سٲنۍ جوان درٛاے گرِ اکھ دِتُکھ تِمن گاڑٮ۪ن تہِ دکہٕ تِم تھاوِکھ سایڈس اصل پٲٹھۍ نہ صرف یِتُے بہٕ اوسُس حالانکہِ آوُٹ سایڈ بہٕ اوسُس نہٕ ییٚتہِ کینٛہہ مگر مےٚ تہِ کرِ واریاہ فون کالٕز رٔسیٖو اَسہِ تہِ کٔر پننہِ طرفہٕ اکھ کوٗشِش اَسہِ ژٲے پننٮ۪ن گرن منٛز تِم ٹوٗرِسٹٕس تِم نی مسجِدن ہٕنٛدۍ دروازٕ کھوٗلۍ یا باقین درسگاہن ہٕنٛدۍ دروازٕ کھوٗلۍ حمامس پٮ۪ٹھ کوٚر تِمن راتس وٕشنیر چک بستر کی راہ چلتے پتھروں نے مجھ کو دیا پانی بالکل کہ ذرا ذرا کشمیر کا ہے مہمان نواز بالکل تہٕ یہِ گژھِ نہٕ مٔشِد تہِ گژھُن کینٛہہ سانٮ۪ن جوانن مگر بدقٕسمتی سان اکھ چیٖز چھُ ییٚتنس جس سے ہم قطعن اپنی نظریں نہیں چُرا سکتے سُہ گوٚو أسۍ چھِ میزبٲنی اَمہِ سۭتۍ چھِ أسۍ مشہوٗر یا یِم چیٖز نِیاز صٲبن ییٚتنس فرمٲے مگر اتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ پنٕنۍ نظرٕ دوٗر تھٲوِتھ کہِ ییٚتہِ چھِ کینٛہہ خرافات تہِ واریاہ یِتھ کٔنۍ أسۍ واریاہ لٹہِ یتھ پروگرامس منٛز کتھ تہِ چھِ کٔرمٕژ کہِ ڈرگ ابیوٗز یا باقٕے چیٖز سبسٹنس ابیوٗز چھِ وٕنکیٚس آن د رایز سٲنۍ گُزٲرِش آسہِ سانٮ۪ن جوانن کہِ تُہۍ ٲسِو أسۍ ٲسۍ سون پوٚت کال یُس اوس سُہ تہِ اوس تابناک یہِ چھُ وۄنۍ تُہنٛدٮ۪ن اتھن منٛز یہِ مُستقبل سوارُن انشاء اللہ ییٚلہِ انسان پازِٹِو مایِنڈ سیٹ اپنایہِ نہ پننِس تہٕ اللہ تعالیٰ چھُ وتہٕ کھولان اللہ تعالیٰ چھُ قوم بالکل سُہ بہتر بنان آز یِتھ کٔنۍ أمۍ ووٚن نہ کہِ سون فیوٗچر مُستقبِل تہِ چھُ تابناک مگر یِم أزِکۍ مہمان چھِ بہٕ کرٕ تۄہہِ یہِ یقیٖن دِہٲنی تۄہہِ کہِ یِم أزِکۍ سٲنۍ مہمان چھِ ییٚلہِ تُہۍ تِمن سۭتۍ روٗبروٗ گٔژھِو ییٚمہِ سانگہٕ پتہٕ گۄڈٕ چھُ اَسہِ یہِ سانگ تۄہہِ گژھِ یہِ یقیٖن کہِ سون یُس مُستقبِل چھُ سُہ چھُ واریاہ روشن انشاء اللہ رحمان اگر اولڈ از گولڈ مگر بہٕ وَنہٕ کہِ نِو چھُ وۄنۍ ڈایمنٛڈ اَسہِ خٲطرٕ حظ تہٕ تۄہہِ روزِ یُس یہِ اضطراب چھُ یہِ تھوٚو یِتھٕے کٔنۍ تجسُس تھوٚو یِتھٕے کٔنۍ مہمان کم چھِ مگر گۄڈٕ اکھ بٲتھ راشِدا سٕنٛز آواز تہٕ یہِ چھُ اَسہِ فِلمومُت صنم جی ہِنٛز یتھ شکلہِ پٮ۪ٹھ تصویٖر پٮ۪ٹھ بوٗزِو یہِ بٲتھ وٕچھان روٗزِو پروگرام گُڈ مارنِنٛگ جے اینڈ کے
ویلکم بیک ناظرین اچھے امید زِ یُس یہِ ڈٲلۍ تُہنٛدِس خدمتس منٛز اَسہِ پیش کٔر تۄہہِ آسہِ یہِ پسنٛد آمٕژ نیاز صٲبن تھوٚو اضطراب برقرار کہ کم چھِ أزِکۍ مہمان شخصیت تِمن سۭتۍ کرناوو تُہُنٛد تعارف ضروٗر مگر ییٚتنس چھُ وقت کہ نِمو اکھ کمرشل وقفے کے بعد جب لوٹیں گے تو آج یقین مانیے کہ آج گژھِ تُہُنٛد دل خۄش تُہۍ گٔژھِو بالکل مسرور تُہۍ وٕچھِو اکھ نو نِحال پرسنیلٹی چھِ آز سٲنِس سٹوڈیوس منٛز آمٕتۍ یِہُنٛد تعارف کرناوو ضروٗر دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ چینج इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन तो शोशम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। अलामा इकबाल को रख दुआ कि जवानों को मेरी आह सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालों पर दे। तो यम आज मेहमान यमन कुन वुचित मे यकीन गसान कि अलामा इकबाल सु दुआ वारिया लटि कबूल गसान तो तमिच अख बड़ मिसाल अजिक सन मेहमान यम महज 13-14 वरिश वंस मज हिंदुस्तानुक सारनी खोत बोड़ अवार्ड यथ सिविलियन अवार्ड प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हाल हालै म्यूल तो यम कुन तारुफक तारीफक मोहताज कहें यमन अल्लाह तालन हुस्न यूसुफ दुतमुत तो सत लहने दाऊद तो दुतमुत तो पूर कशीर मज मशहूर पन्नेव कह वायरल कलामो यम लक्च वंस मज सूफी सिंगर त बने अस तशरीफ फरमा सन शान सोन इकराम अयान सजाद। अयान बहुत बहुत खैर मकदम, बहुत बहुत मुबारकबादी पहले इस बात के लिए कि आपको जो पुरस्कार मिला प्रधानमंत्री राष्ट्र बाल पुरस्कार, इसकी फीलिंग कैसी थी उस वक्त कि आप प्रेसिडेंट से मिले? तुई समखेयू प्रधानमंत्री मोदी और वो फीलिंग जो थी वो जबरदस्त हुई। बिल्कुल। और वैसे भी कि सबसे वो छोटे बच्चों जिसका मैं खुद फैन हूँ और हम सभी फैन हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारी कशीर तुहज फैन कि हम कलामो मूजूबन गोडनुक कलाम तुम करो कत तुम अवार्ड मिलो यह मिलो तुम प्रमोटिंग आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज इन कश्मीर। अल्हम्दुलिल्लाह अत लक्ष्य वंस मज युथी तुम सह बेदर्द चाइन गेवू तम विज मतलब अभी तो थोड़े से बड़े हो गए हो, तब तो और भी छोटे थे, अब हल्की हल्की मूछें भी आई हुई है और दाढ़ी भी आने लगी है माशाल्लाह। तो मगर ये ब्रो कि हम आपसे बात करें और सफ़र के बारे में भी पूछें, ये जो प्राइम मिनिस्टर से मिलना वो सब पूछेंगे हम, मगर जिसके लिए आप वायरल हुए और जिसने आपको फेम दी तो मैं चाहूँगा कि इरफान उसी से ही हम शुरुआत करें। बिल्कुल। कुनने का जो हजरत यूसुफ मिस्र के मज़बा ज़ारो लो खुदा सूज नहीं, खुदा सूज नहीं, रुखरी दारो थोदवथो यूसुफ यारो लो बेदर्द दाद चाने। माशाअल्लाह क्या बात है। जब इसी तो ये बेदर्द चानी वायरल हुआ ना, मुझे बहुत देर तक यकीन ही नहीं हुआ ये अब गा रहे हैं। मुझे लगा कि ये अयान कोई लड़का एक्टिंग कर रहा है और कोई बड़ा सीरियस सा कोई सिंगर है, क्योंकि इस कलाम में यूसुफ मिस्र किस बाजारस मज कुन पत ये सीरियस कलाम सूफी कलाम, क्योंकि अत वंस मज बच्चे पबजी गिंदान, बे इंस्टाग्राम चलावान, बे गरकन लड़ाई लागान, पिज्जा खाने तो बे बर्गर खाने। मे वन तो गोड तो अयान ये कत युथी तुम वन ये प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार मिलो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ट्रीट कमिस कमिस दिसो तुम?
एज सच दिस ने इसका पर्टिकुलरली ट्रीट कर ये तो मगर कंजूसी वाली बात होगी, इतने बड़े नहीं, अवार्ड में मतलब- आपने ट्रीट ही नहीं दिया हमें। और हमें आज ये था कि आज इन डॉक्टर सजाद लोनी हम साइड पे ऐसी मिठाई विठाई है, तिमाई ने मिठाई है न केक है सर एक्चुअली अवार्ड यम साथ मिलो अम पत अस एक्चुअली प्लान अस करो क्या टाइम स्टे दिल्ली मज तम पत अवार्ड पात थोड़ा करो तत टाइम स्पेंड थोड़ा मिलो तत लगन क्या बाकी अवार्डीज तमो मज रूद क्या आफ्टर फॉर अ फ्यू डेज आफ्टर द अवार्ड मगर अस एक्चुअली तम पत ये इवेंट्स तो मीटिंग्स यम साथ अवार्ड मिलो अड़ इवेंट्स वन शेड्यूल्ड ब्रोट कुन मे दपो प्लान करो तत थोड़ा टाइम स्टे कर पे तमो वापस ये करो आराम सान सारे मिलो असल पे फैमिली गैदरिंग करो इनफैक्ट बह मिलो तन पे पर्टिकुलरली मतलब फैमिली गैदरिंग कर तन पे कह जॉइन वो तो इराद क्या फैमिली गैदरिंग करना डेफिनेटली फैमिली मिलो असल पे सारे कांग्रेचुलेशन करे हर कह कॉल कर सारे फिलहाल मैसेजेस आए मगर सो प्रॉपर मीटिंग गई वन पार्टी गई नहीं हाँ वन गई नहीं तो मगर इंशाल्लाह प्लान अगर मैं पार्टी गए मशरे बिल्कुल रेशवन पार्टी ये बताइए कि जो ये प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार आसान ये किस लिए होता है, जरा थोड़ा सा, चूंकि सान बचन मन टैलेंट जबरदस्त ना लड़क लकट लकट तो सिंगिंग हूं टैलेंट कह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह कंप्यूटरस मज कह स्पोर्ट्स मज वगैरह, ये क्या आसान ये पुरस्कार तो ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या असली बाल पुरस्कार हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मगर चाइल्ड अंडर 18 अर्दा वुहर काम काम तमिस खतर बाल पुरस्कार कंसिडर कर हाईएस्ट अवार्ड यह फील्डन मज मिलान यह ब्रेवरी खतर मिलान आर्ट एंड कल्चरस मज सिंगिंग डांसिंग कंट्रीब्यूशंस टू आर्ट एंड कल्चरस खतर मिलान स्पोर्ट्स मज मिलान यमो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स गुनमुत यमो कॉम्पिटिशंस जॉइन कर्मित यमो तो पन्निस फील्डस मज एक्सेप्शनल यम अचीवमेंट्स हासिल कर तिमन मिलान तो आव ये दिन फॉर सूफी सिंगिंग आर्ट एंड कल्चर एंड पर्टिकुलरली अच्छा एक कैंडिड मोमेंट था कि अवार्ड तो लिया ही सुई आई न्यूज में सारी पाई, एक कैंडिड मोमेंट था कि आपने प्राइम मिनिस्टर का पेन ले लिया, वो पेन का है पेन आई एम सॉरी बट एक्चुअली आज पेन मैंने साथ नहीं लाया है बट पेन सर से एक्चुअली साइन हमने लिया था जो साइटेशन है उस पर साइन बट वो एक्चुअली प्लान नहीं था बट हमारी इंटरेक्शन के वक्त मैंने कहा सर आप प्लीज अपना ऑटोग्राफ दे सकते हैं तो फिर उन्होंने कहा कि फिर तो सबको देना पड़ेगा जो भी हैं अवार्डीज। मैंने कहा सर बट प्लीज, तो फिर उन्होंने पहले मेरी साइटेशन पे फिर बाकी सब जिन्होंने मांगा तो सब पे साइन करा, फिर उन्होंने उसके बाद एंड में जब उन्होंने साइन करके खत्म किया तो मैंने कहा सर अयान बड़ी चालाक है, मैंने इनसे कल बोला कि वो पेन ना आप साथ ले आना, मैं कह रहे गुजारिश नाज़रीन पेन, इन्होंने वो घर में डिलिबरेटली शायद रखा कि नियाज भाई शायद पेन ले जाएंगे। अरे सर नहीं, तो वो प्रधानमंत्री का गिफ्ट वैसे मैं ले नहीं जाता, नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तब बिल्कुल याद ब्याक ये तो हम ले भी नहीं सकते बिल्कुल सेंसेशनल पर्सनालिटी वनकस ट्रांसफॉर्म गई तो अस नश वनकस बनफ मौजूद गई अयान सब ये वन तो क्या हमेशा प्रसान यम त मेहमान दिन तिमन वन तुम कत तुंद ताल्लुक कत एरिया सह अमि मूजूब वन ताकि लुक जाना पे आर्ट सर देयर इज नो डाउट, मगर तथ सत लुकन यह बेहन दिलस तिज नियाज सब रात बह वत पकान सोवर किन तो मे समो नफर तथनस कन तम तोन मे यह कि वारिया लटि मिस गसान कि कम कत रोजान तो यहां यह जान आपका तारुफ मतलब सिंपली बिल्कुल शॉर्टकट आपका तारुफ बताइए कहां से है क्या है सफर। बहुस असली रोजान दरीगुंड श्रीगफ्वारा अनंतनाग छुस बह रोजान एप्पल टाउन बिल्कुल एप्पल टाउन बॉर्न एंड ब्रॉट अप सेब की तरह लाल है बिल्कुल तूड़ सिताज गसान थोड़ा बिल्कुल बहुस दरीगुंड श्रीगफ्वार हो रोजान वॉल असली बहुस मगर करंटली स्टे छुस बह करन राजबाग श्रीनगरस मज एजुकेशनल पर्पसेजन खतर तो बे बाकी यम मे कॉन्टैक्ट्स इवेंट्स कॉन्टैक्ट्स तम ज्यादातर ये फोकस। हम इस पर बात करेंगे, लेकिन ये साइटेशन दिखा रहे थे शायद कि उस पर साइन था, यही मोदी ये जो हाँ बिल्कुल 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 यही मोदी जी का सिग्नेचर है, वो एक्चुअली हिंदी में साइन करते हैं तो ये ही उनका सिग्नेचर है। उन्होंने भी गाने के लिए बोला वहाँ पे, हाँ बिल्कुल उन्होंने गाया, वो तो वायरल थी क्लिप। अच्छा आप शुरू कर रहे थे इवेंट्स के लिए, आप यहाँ श्रीनगर स्टे? हाँ मैं श्रीनगर में स्टे कर रहा हूँ फॉर इवेंट्स और एजुकेशन, क्योंकि स्कूल जो मेरा है वो यहाँ से ज्यादा क्लोज पड़ता है और ज्यादा ईजी वे है। ठीक है, इसलिए आप अच्छा बिल्कुल मानता हूँ मैं ये कि आपको कब ये एहसास हुआ कि यू आर गुड इन सिंगिंग? बचपन, अभी तो आप बचपन में ही है तो ये सवाल जरा ना डिफिकल्ट है कारपेट को, तो कैसे पता चला यू गॉट इनटू द सिंगिंग वगैरह?
मतलब ऐसा पर्टिकुलर तो कोई हुआ या क्या इट वाज एन एक्सीडेंटली कैसे हुआ ये? कुछ पर्पस कुछ स्कूल में एक्सीडेंटली इंसान यहां पा दपन टीचर ये नहीं, एक्चुअली जब मैंने रियलाइज किया कि आई कैन इमिटेट जो सॉन्ग्स हैं उसके बाद ही मैंने स्कूल में ऐसे परफॉर्म किया। उससे पहले मैं इतना नहीं था लाइक इंडल्जेंट इवेंट्स और सिंगिंग वगैरह। तो एक्चुअली आई गेस के समवेयर अराउंड मैं फैमिली में ही थोड़ा ये एक्सपोजर मिला कि यू कैन सिंग, और उसी के थ्रू आई बिलीव ये मतलब मोटिवेशन मिली, एल से थोड़ी अप्रिसिएशन मिली, तो उससे मैं भी मोटिवेट हो गया। फैमिली में कोई करता है किसका सपोर्ट था ज्यादा, मतलब व्हाट डू यू मीन फैमिली, फादर मदर? आई से कि मेरी पूरी फैमिली ही बहुत ज्यादा सपोर्टिव है और बहुत ज्यादा हेल्प करती है थ्रू आउट दिस जर्नी, बट पर्टिकुलरली अगर पॉइंट करना पड़ा तो पापा डेफिनेटली पापा की तरफ ही मैं पॉइंट करूँ, क्योंकि आई गेस वैसे तो सपोर्ट सारे करते हैं बाय वर्ड्स, बट बाय एक्शंस एंड सपोर्टिंग मी थ्रू एवरी फील्ड। हाँ एग्जैक्टली, तो पापा उसमें आई गेस। फैमिली में कोई करते हैं सिंगिंग आपसे पहले? नॉट पर्टिकुलरली, मतलब नोबडी इज इन द इंडस्ट्री, नॉट प्रोफेशनल सिंगिंग ऐसे, और ना ही घर पे वैसे भी नॉट एज सच, बट आई डोंट थिंक। अयान देखो क्यों पूछ रहे हैं, कुछ साथ जो आसान फॉर एग्जांपल यू आर यंगर इन एज, बहुत छोटे हैं अभी आप, इनबॉर्न टैलेंट जरूर आसान, मगर सो टैलेंट आसान निखारन कुन जरिए तक रियाज जरूरत आसान, बाकी कोशिश जरूरत आसान, तेल बन कंप्लीट सिंगर। तो यम साथ मे इंटरनेट्स पे तुहज क्लिप्स वुच तुहद वीडियोज वुच, बह गोस पजल कि अख लकुट लड़कह यूथा असल मतलब हेकान गेवित अलॉन्ग विद म्यूजिक या बाकी चीज, ये तो यूं ही नहीं हुआ होगा ना, इसके पीछे कोई बैकग्राउंड तो होगा, कहाँ उस्ताद आस रोदम, कहाँ बाकी चीज आसान रोदम, यमो तो हेल्प एक्चुअली उस्ताद मेरे हैं एक उस्ताद, बट उनसे मैं मिला अबाउट जब सिंगिंग जर्नी मेरी स्टार्ट हो चुकी थी, और आई से डेफिनेटली उनका नाम उमर सर है, और उन्होंने डेफिनेटली इस जर्नी में बहुत हेल्प किया। उमर निसार? नहीं, उमर निसार है जिनके साथ मैं लेबल के साथ काम करता था, आरजे उमर निसार, जिनके साथ मेरा पहला गाना, जिनके साथ के मेरे पहले 3 ट्रैक्स हुए हैं, बेदर्द दादी चानी, जाने जाना और गोव क्या मलाल यारस। वो जो लेबल मैनेजर थे, जो पुरानी लेबल है मश्क रिकॉर्ड्स, जिनके साथ मैं काम करता था, वो लेबल मैनेजर है, बट उमर सर वो अलग है। उमर सर एक्चुअली उन्होंने जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहाँ पे वो टीचर थे, और उसके बाद वो एंड बिरला ओपन माइंड्स में वो आए, एंड आई बिलीव उन्हीं के थ्रू मैं बिरला ओपन माइंड स्कूल में भी आया, एंड उनकी गाइडेंस डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प। किस क्लास में हैं आप? अभी मैं 10th में हूँ। 10th में। अभी आप एजुकेशन के बारे में भी पूछेंगे। बिल्कुल। तुम मा सिंगिंग योत करान तो पढ़े पेवान इथी, मगर यमन मा मलाल सान यमन कि आज हमारे साथ अयान है और ये अभी इन्होंने कुछ और गाया नहीं, तो मैं गुजारिश करूंगा कि गो क्या मलाल के कुछ जो आपको याद हो, अंतरा हो या कोरस जो। गो क्या मलाल यार, गो क्या मलाल यार, ये ना दोबार लतिए कर क्या बयथ अमारस, वुच हंसुवार लतिए गो क्या मलाल यार। थैंक यू सो मच। मैं नाजरीन को बताता चलूं कि आज अयान एज अ सिंगर योर इनमित कह बोजनावान ये वन तो इट इज अ फेदर इन कैप, आज एज अ पर्सनैलिटी योर इनमित कुछ विज कर प्लान एज अ सिंगर, जब हम पूरा सॉन्ग आपसे गवाएंगे बिल्कुल, और फिर इंस्ट्रूमेंट भी होगा इंशाल्लाह, उसके लिए भी आप तैयार रहिए। अच्छा, आप 10th क्लास में हैं और स्कूल में आप तो हीरो होंगे फिर तो। अयान वैसे ही फेमस है, वायरल है पूरे, तो जो आपसे बाकी जो दोस्त वो से वो तो आपसे जल्दी दोस्ती करना चाहेंगे कि अयान वो भी सोच रहे होंगे कि हम भी सिंगिंग की तरफ ही जाए। हाँ, मतलब आई बिलीव अगर मैं मोटिवेशन बनता हूँ किसी के लिए, सच असली बात मैं नहीं खतरे थे तो भाई तिमन शुडन खतरे थे, क्योंकि अगर मैं किसी को मोटिवेट करता हूँ कुछ करने के लिए, कश्मीर के लिए करने के लिए, अपनी कंट्री के लिए कुछ करने के लिए, खुद के लिए कुछ करने के लिए, तो आई बिलीव वो एक अच्छी ही बात है सबके लिए। सही बात है। सच बताइएगा, टशन है थोड़ा सा जब स्कूल जाते हो, जब आफ्टर दिस गेटिंग दिस वाइब ऑफ हैविंग द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, थोड़ा तो होता है आई बिलीव दोस्तों के साथ वो तो नहीं, मतलब आई विल से के काइंड ऑफ
टशन में नहीं कहूँगा, बट आई विल से प्राउड फीलिंग, वो तो है डेफिनेटली। एक्चुअली मैं आपकी लैंग्वेज में बात करना चाहता हूँ, दैट इज अ प्राउड मोमेंट। तो मैं आपको ज्यादा उन अल्फाजों में नहीं घुमाना चाहता हूँ, इफ्तिखार इकराम वगैरह अब उनमें टशन लफ्ज नुन गर्ज उस टशन कर गॉड 6 तक कमर्शियल ब्रेक आसान तो सुनिमो उसके बाद हम कुछ और भी आपसे गुजारिश करेंगे सिंगिंग के लिए भी, और भी एक दिलचस्प सफर है हमारे एक नौजवान, एक मैं कहूँगा अभी बच्चे ही है, अभी शायद 9th या 10th क्लास में है, उनका जो ये सफर है और मजीद दिलचस्प है। देखते रहिएगा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, तो शुशन पन फेवरेट प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK गुड मॉर्निंग JNK प्रोग्रामस मज आज मेहमान तशरीफ आवा सपत आयान सजाद साहब यम सिंगर मगर योर वनकस तशरीफ अम मूजूब दावत दिजम तक राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलियामुत यह सान खतर इफ्तिखार कत बायस फखर पूरे जम्मू कश्मीर के खतर बल्कि पूरे मुल्क के खतर तक। मगर वनकस वक्त के वातो तम अखबारात की सुर्खियाँ या सब मैंने गोड कर बी मैं बसान शुरू मेरे पास एक अंग्रेजी रोजनामा, इससे 2 सुर्खियाँ। JNK फेसेस ड्राइस्ट ईयर इन 5 decades, 5th straight year of rainfall deficit। इसी अखबार से एक और सुर्खी, कैमराज एस्केप टनल्स एंड मोर, कश्मीर रेल लिंक सेट टू रोल एमिड टाइट सिक्योरिटी, जट मोहर टनल इनॉग्रेशन, सिक्योरिटी टाइटन्ड अहेड ऑफ PM's विजिट। मेरे हाथ में उर्दू अखबार है, लिखते हैं कि जम्मू के सेंट्रल हॉल में जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में 3 रोज़ा ओरिएंटेशन प्रोग्राम जारी। इसी अखबार से एक सुर्खी है, लिखते हैं कि हुक्मरानी में शफाफियत और जवाबदेही बढ़ाने के लिए अहम कदम है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने शहरियों को मालूमात की तक रसाई को आसान बनाने के लिए जम्मू और कश्मीर के RTI ऑनलाइन पोर्टल का आगाज किया। जी मेरे हाथ में एक अंग्रेजी रोज़नामा, ये लिखते हैं ओनली इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कैन एडजुडिकेट JKB वर्कमैन डिस्प्यूट, ये हाई कोर्ट ने कहा है। मेरे हाथ में अंग्रेजी अखबार लिखते हैं कि करप्शन प्लेग श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ACB बुक्स 2 सीनियर ऑफिशियल्स रेट्स मल्टीपल लोकेशंस। एक और खबर इसी अखबार से है कि CM उमर अब्दुल्ला अनवीज जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट ऑनलाइन RTI पोर्टल। जी एक उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में, ये लिखते हैं लालदेद अस्पताल में गुज़श्ता साल शेरख्वार बच्चों की अमवात में इजाफा, लोगों का अस्पताल पे अमले की कमी का इल्ज़ाम, मकामी अफराद और इंतजामिया में तशवीश। इसी अखबार से एक और सुर्खी, जम्मू कश्मीर में गैर मुतवक्का मौसमियाती तब्दीली के बढ़ते हुए असरात ने खतरे की घंटी बजा दी, दरियाई जहली में पानी की सतह काफ़ी नीचे। गुज़श्ता 60 सालों में जम्मू कश्मीर ने तकरीबन 30% ग्लेशियरों को खो दिया। अचानक पे मे खबर पे नजर तो यकीनन ये खबर पर्सनल तो मे खतर कि विंटर ब्रेक्स टर्न्स अनप्रोडक्टिव फॉर कश्मीरी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स डिक्री नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स, बोस प्रॉमिसेस द बुक्स बाय द जनवरी एंड। तकरीबन हेतन जरियत गसिन इरफान की वनी किताब अवेलेबल, उर्दू किताब पानस ठान वत मे रेत 1.5 रेत कि यह बन ना पन्न बचन खतर, यह बचन खतर बना कहें। अक तरफ वन कि किताब थो तम यम सरकार या बोस कर जारी, मगर दम तरफ किताब अवेलेबल नश कहें। खैर यम अखबारन हज सुर्खी, तो अखबारन हज सुर्खी अस तशरीफ फरमा अयान सज्जाद। अयान, सिंगिंग और पढ़ने का जो बैलेंस है ना, यह बैलेंस कर तो इवेंट यप पे मज तु पे दिल तु पे गसन, यहाँ से इवेंट है, यहाँ 10th क्लास में, अभी आप 10th में है, अभी आप 10th में है, तो इस चीज़ को बैलेंस कैसे करते हैं आप?
بیلنس کرنا مشکل ہے بالکل, بٹ ناممکن نہیں ہے, کیونکہ جو پیشن ہے میرا سنگنگ, پیشن کو تو کائنڈ آف پڑھائی میں مجھے محنت کرنی پڑتی ہے. پڑھائی میں بیسکلی میں کہوں گا کہ ابھی 10th کلاس ہے تو یہ ایک بڑا اسٹیپ ہے فرام دا پریویس کلاس, مطلب ایک لیپ ہوتا ہے, بالکل ایک لیپ ہوتا ہے 10th میں, کیونکہ اور بورڈ ایگزامس اسپیشلی, بورڈ ایگزام تو 10th کلاس ایل سے کے پڑھائی کرنا اس میں تھوڑا ٹائم زیادہ چاہیے اور زیادہ محنت میں کہوں گا, زیادہ فوکس چاہیے. اور بٹ ایٹ دا سیم ٹائم سنگنگ جو ہے وہ میرے لیے ایک بریک ہے. سنگنگ میرے لیے جس سے کہ مطلب میں کام ہوتا ہوں, جو کہ میرے لیے جب میں تھک جاتا ہوں پڑھائی سے یا تسکین ملتی ہے, ہاں ایگزیکٹلی, سنگنگ از کائنڈ آف جہاں پہ پھر میرے کو وہ پیس آف مائنڈ, بالکل ڈیفینیٹلی. اچھا پاپا کے بارے میں آپ بتائیے تھوڑا, پاپا کیا کرتے آپ کے, اور پاپا کا اس بارے میں جو سپورٹ ہے کہ پڑھائی اور اس کے بیلنس میں ان کا تو کچھ مشورہ ہوگا اس بارے میں. ناٹ اونلی پاپا, یور مدر آلسو, کیونکہ بوتھ پیرنٹس کا سپورٹ جب تک نہیں ہوگا تب تک پاسبل نہیں ہے کسی بھی انسان کے لیے آگے جانا. بالکل. تو پاپا کا سپورٹ تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا, پاپا سب سے زیادہ سپورٹیو رہے ہیں اور پاپا سپورٹ ہمیشہ کرتے ہیں. اینڈ میرے پاپا خود ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہیں, تو دیٹ از اے بگ ہیلپ فار می ان ٹرمز آف ایجوکیشن. مطلب وہ ہیلپ کر سکتے ہیں, وہ گائیڈنس دے سکتے ہیں, وہ ایڈوائس دیتے ہیں, سجیشنز دیتے ہیں, ریکمنڈیشنز دیتے ہیں ریگارڈنگ اسٹڈیز. تو میں کہوں گا کہ وہ بہت ہی بڑی ایک ہیلپ ہے میرے لیے. اور مما کی بات کریں تو وہ بھی ایٹ دا سیم ٹائم ایک ایکول رول پلے کرتے ہیں فیملی میں. اور سپورٹ فیوریٹ ہو وہ تو مجھے لگتا ہے وہ بہتر جواب دے سکتے ہیں. اچھا, لیکن ایک چیز بتائیں, ہم سب پورے کشمیر کے آپ فیوریٹ ہو. بالکل, آپ ماما پاپا کے تو ہے ہی, وہ تو ہے, وہ ماں باپ ہے, ان کی محبت کا تو کوئی جواب یہی نہیں ہے, دوسرا کوئی مثال ہے ہی نہیں. لیکن ہم سب کے بھی بہت فیوریٹ ہے, اور چاہے بچے ہو, چاہے بزرگ ہو, چاہے جوان ہو, سب ایان کو بہت پسند کرتے ہیں, کیونکہ اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ نے یہ نا جو سانگس گائے ان میں زبردست منچ مطلب تھی, زبردست منچ وہ گہرائی ان میں بھی, اٹس ناٹ لائک دیٹ. اچھا مجھے بتائیے گا, پروفیشنلی آپ کیا سنگر ہی بننا چاہتے ہیں کہ یہ بس اک پیشن, کہ یہ اک سائڈس اک چیز, اینڈ ہاؤ ڈو یو سی ایز اے سنگنگ ایز اے پروفیشن, چونکہ اب آپ ایونٹس وغیرہ کر رہے ہو, اس میں پروڈکٹیوٹی یا باقین کوتاہ چھُ پتہ فائدہ ات مز؟ سنگنگ ایز اے پروفیشن آئی بلیو اٹس گریٹ, کیونکہ ہاں, کیونکہ لیٹ سے ایز این امپلائی آپ اپنے لیے کماتے ہیں, آپ اپنی فیملی کے لیے کرتے ہیں, بٹ ایز اے سنگر یو پرووائڈ امپلائمنٹ ٹو لائک 10 ادر فیملیز. میں ایک پروجیکٹ, اف آئی انیشیٹ اے پروجیکٹ, اس میں بہت لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں, اس میں ایک ڈائریکٹر انوالوڈ ہوتا ہے, اس میں ایک ڈی او پی انوالوڈ ہوتا ہے, اس میں لائٹ بوائے بھی انوالوڈ ہوتا ہے. مطلب اس میں فرام ایز ہائی ایز اے ڈائریکٹر ٹو اے لائٹ بوائے, ہر کسی کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے ایکولی. تو کائنڈ آف اس سے بہت لوگوں کو ہیلپ ملتی ہے, بہت لوگوں کا گھر چلتا ہے. اینڈ ایونٹس کی تو ہم بات کریں تو ایونٹس میں تو بہت زیادہ لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں, اینڈ ڈیفینیٹلی ایگزیکٹلی ہر کسی کا فائدہ ہی ہوتا ہے اس میں, ایوری بڈی گیٹس دیئر شیئر. اینڈ آئی بلیو سنگنگ میرا پیشن ہے, اور یہ ایز اے پیشن ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا. ایز اے پیشن آئی ووڈنٹ سے کہ دس از سائڈ ہسل اور سم تھنگ لائک دیٹ, کیونکہ اٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول ان مائی لائف. یہ میرا پیشن ہے, میرا پیشن رہے گا. اینڈ نو میٹر واٹ آئی ڈو ان لائف, اور ایون اف آئی گو ان ٹو دا فیلڈ آف میوزک, پروفیشن وہ بھی ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی, ایون اف آئی گو ان ٹو another profession, singing is going to stay as my passion for now. اچھا یہ بتائیے, who has opted this hairstyle for you? Actually ہاں نہیں, ایکچولی مائی ہیئر ازنٹ یوزلی لائک دس. آئی ہیو ہیڈ اے فیو ہیئر کٹس کچھ ٹائم سے, مطلب آئی کوڈنٹ پراپرلی ٹیک کیئر آف مائی ہیئر. لیکن جب میں نے وہ کلپس دیکھی اس میں تھوڑا لمبے بال ہیں. ہاں ایگزیکٹلی, میں نے بال چھوٹے کیے جسٹ آئی بلیو اے فیو ویکس اگو. میں نے حال میں آپ کا ایک اور ریلیز ہوا ہے, کل شاید ہوا ہے, ہاں کل شام شاید ریلیز ہوا, تو وہ آپ کو میں گزارش کروں گا, ناظرین بھی سنیں گے کیا ریلیز ہوا ہے, اور سانگ کا کچھ اب حصہ گائیے ہمارے لیے. تو کل میرا گانا ریلیز ہوا ہے اراؤنڈ شام کے 4:30 بجے, جس کا نام نگارہ ہے. روان اوریجنلز کے ساتھ یہ گانا ہوا ہے. اس کے پروڈیوسر ہیں عارف میر, جن سے کہ میں نے اپنے باقی گانے بھی پروڈیوس کرائے ہیں. دا بیسٹ پروڈیوسر آئی نو پرسنلی. اور فیصل بٹ سیریز بھی اب پروڈیوس کرے گی انشاءاللہ. we'll see. We wish you all the best for that. Thank you so much. And the director is Faisal Bhatt, and اس کے composer ہیں Aiden Shahid, one of the best composers I know. اور یہ گانا I believe it's a product of a lot of hard work, a lot of work. Definitely بہت زیادہ محنت لگی, especially in the shoot of this video, کیونکہ آڈیو کا تو ہم اسٹوڈیو میں بیٹھ کے کر لیتے ہیں. آڈیو از mental endurance, but فزیکلی چیلنجنگ تھا اس کا شوٹ بہت زیادہ.
کیونکہ the shoot was in a place it's named مجھ پتھر. مجھ پر اینڈ وہاں پہ گاڑیاں پہنچنا اور برف میں ہاں ایگزیکٹلی. آپ نے جو وہاں پہ گایا یہ سفر بالکل اتھ مز پرسو ضرورت تکیازِ اسہِ چھُ بوزُن تہِ تۄہہِ کیٛاہ گیووٕ تتنس تہٕ یُس راتھٕے ریلیز چھُ گوٚمُت نیاز مگر یتنس رکو بیٚیہِ ایک وقفہ. ہاں یہ پتہ کیا ہے یہ سرپرائز ہے کہ یہ وقفے سے بھاگ نہ جائے اس لیے ہم نے پہلے کہہ کے رکھا. سانگ نیا ریلیز ہوا ابھی انہوں نے سنا نہیں ہوگا, بہت سے لوگوں نے کم ہی سنا ہوگا, اس لیے ناظرین ہم پہلے وقفہ لیں گے. آپ کو جھگڑے رہنے کے لیے اور پکڑے رہنے کے لیے ہم نے یہ تجسس برقرار رکھا. پہلے یہ وقفہ لیں گے ہم اور اس کے وقفے کے اس پار ایک نیا سانگ ریلیز ہوا ہے ایان ساجد کی زبان سے سنیں گے یہاں لائیو. دیکھتے رہیے گا پروگرام گڈ مارننگ JNK. اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا. 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 خیبر OPC گریڈ 53 سردیوں میں بھی مضبوطی سے سیٹ ہو جائے تو آپ کے سردیوں میں مکان, دکان, ڈیم سب سیٹ رہیں گے. خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ. ویلکم بیک ناظرین. سب سیٹ رکھنے کے لیے دل و دماغ اور روح کو سیٹ رکھنے کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے ایان سجاد کو. ایان سجاد اس رات سانگ گومت ریلیز وہ گائیے تاکہ سب سیٹ رہے گا. بالکل. مصری بسین ہاوی زخم جگر نگارا وچھتم تکال راوی دوچم دیگر نگارا مصری بسین ہاوی زخم جگر نگارا وچھتم تکال راوی دوچم دیگر نگارا. شکریہ. وشز یوان لوکن ہند طرف یم تم ونکس اس لایو وچھان چاہے یوٹیوبس پہ چاہے ٹیلی ویژنس پہ مگر پرسا یتنس اخ کت یل بہ اوسا تہند ایج ہن پتہ اوس مے 10th ایگزام تو یل مے بوز رزلٹ تو ژاوس نا گھر کہین بہ بیٹھس سوری مے وون ہے کیا پتہ کیا رزلٹس من سوئی یس تہذ ایج ونکس ات مجھ بچہ آسان یت یمو فرمو گۄڈنیتھٕے PUBG گِنٛدان یا باقی گیم یا تمن سۄ شاینس دے ڈونٹ وانٹ ٹو فیس د کیمرا یا باقی چیز تم چھنہٕ یژھان ات پٮ۪ٹھ یُن کِہیٖنۍ. اکھ مےٚ دوٚپ یہِ شاینس کر ژٔج تۄہہِ کِتھ کٔنۍ ژٔج تہٕ بیٚیہِ یژھا بہٕ ییٚتنس یہِ ایڈ کرُن کیازِ واریاہ بچہ آسان أسۍ ونکس وٕچھان کہ تۄہہِ کیٛاہ باسان سکوٗلِنٛگ ہُنٛد کوٗتاہ اِمپاٹنٹ رول چھُ کٲنٛسہِ تہِ ہٕنٛز پٔرسنلٹی ڈیولپ کرنس منٛز اکھ بیٹر سکوٗلِنٛگ کۭژاہ اِمپاٹنٹ. شائنس کی بات کرے تو شائنس مکلے میں یہ ٹی وی پروگرامز گوڑے کی کیازِ کہ بہٕ ویڈیوز تم برونٛٹھ تہِ بناوان بہٕ یِتھے کٲٹھۍ بہٕ انان کیمرا مائک اینڈ ایوری تھنگ فون سۭتۍ ریکارڈ کران ٹرائیپاڈ لاگان ویڈیو ریکارڈ کران تو اپلوڈ کران. ایگزیکٹلی سیلف پروڈیوس کران پنٕنۍ میوزک ویڈیوز. تمہِ سۭتۍ کیٛاہ گوٚو ایکچُلی تھوڑا سا شاینس ژٔج ییٚلہِ مےٚ گۄڈٕ پٮ۪ٹھے وٕچھ مطلب لُکن ہُنٛد کیٛاہ ریسپانس چھُ آسان. واریاہ لُکھ أڑۍ چھِ نیگیٹِولی رِیکٹ کران أڑۍ چھِ پازِٹِولی رِیکٹ کران کوٗتاہ سپورٹ چھُ مِلان کۭتیاہ لُکھ چھِ کوٗشش کران ہے یہِ گژھِ نہٕ کرُن بیٚیہِ کینٛہہ. تمہِ سۭتۍ گوٚو ایل سے گۄڈٕ پٮ۪ٹھے گوٚو مےٚ عادت تھوڑا ٹو دیٖز تھِنگس. پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ گۄڈنیُک رِکاڈ ریلیٖز گوٚو توٚتام ٲسۍ مےٚ سٹیج پٔرفارمینسز تہِ واریاہ کٔرمٕتۍ. توٚتام اوس مےٚ سِنگِنگ کامپِٹِشنز نعت کامپِٹِشنز اینڈ یِم باقٕے یوٗٹیوٗب ویٖڈیوز ٲسۍ مےٚ تیٖتِس کالس واریاہ کٔرمٕتۍ تہٕ آی بِلیٖو تِمو سۭتی گوٚو تھوڑا سُہ مےٚ مینٹل سٹرکچرِنگ. سکوٗلٕچ اگر کتھ کرو سکوٗل چھُ ڈیفِنیٹلی ون آف د بِگیسٹ فیکٹرز آف د لایف آف اے چایلڈ ناٹ اونلی فار اسٹڈیز کیونکہ اسٹڈیز آئی بلیو اسکول ازنٹ دا پلیس فار مینلی اسٹڈیگ کیونکہ پڑھائی جو ہے وہ بچے کے اپنے ہاتھوں میں ہوتی ہے اور بچہ پڑھائی کر سکتا ہے. فار ایگزامپل وہ خود پڑھ سکتا ہے سیلف اسٹڈی کر سکتا ہے اینڈ آج کے دور میں آن لائن سب کچھ اویلیبل ہے تو آن لائن بچہ پڑھ سکتا ہے. دیر آر اے لاٹ آف پلیٹ فارمس
और आज हम देखते हैं कि बच्चे ज़्यादा कोचिंग प्रेफर करते हैं इन स्कूलिंग आई बिलीव इज़ अ ग्रेट वे ऑफ गैदरिंग एक्सपीरियंसेस, मीटिंग न्यू पीपल, बातें करना, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स, एक्स्ट्रा करिकुलर्स, स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग. तो इस चीज़ में आई बिलीव स्कूल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. हाँ, नॉलेज, एग्जैक्टली, क्योंकि व्हेन वी एजुकेशन इजंट ओनली अबाउट किताबों में पढ़ना और लोगों से मिलते हैं, टीचर से जो एडवाइस मिलती है, टीचर से जो तरबियत मिलती है, आई बिलीव दैट इज द मेन मोटिव ऑफ स्कूल. एंड आई एम स्पेशली थैंकफुल टू माई स्कूल बिरला ओपन माइंड्स. एंड वहाँ पे आई बिलीव देयर इज नथिंग बेटर आई कुड आस्क फॉर. द स्कूल हैज एवरीथिंग. आई बिलीव फ्रॉम एक्स्ट्रा करिकुलर्स में जो एक्सपोजर मिलता है, फ्रॉम दैट तो जो पढ़ाई में वहाँ पे जो सीरियसनेस है, एंड एट द सेम टाइम जो वो टीचर्स का स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन है, टीचर्स का स्टूडेंट्स के साथ जो टोन होना ही चाहिए. खैर, हाँ, exactly. हम मजीद बात करेंगे आपसे, लेकिन आपकी इजाज़त से एक वक्फा है हमारे यहाँ प्रोग्राम में, क्योंकि आप इवेंट्स के तो मानूस ही है, आपको इन चीज़ों के बारे में पता ही है. वक्फा लेना पड़ता है. वक्फा हमारा दिल तो चाहता नहीं है कि वक्फा ले, हम अयान से ज़्यादा बातें करें और भी कुछ सुने, लेकिन पहले ये मुख्तसर सा एक वक्फा है. उसके बाद हम अयान सजाद से जो दिलचस्प बातें और इनके मजीद सफ़र और फिर और भी कुछ हम इनसे गुजारिश करेंगे. ये सिंग करेंगे हमारे लिए, गाएंगे हमारे लिए. इसलिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK. पसमानदगी और बेरोजगारी बढ़ती हुई आबादी के चंद अहम मसाइल है. हमारे देश में 60 करोड़ नौजवान 18 से 35 साल की उम्र में काबिल रोजगार हैं. लिहाजा पढ़े लिखे बाहुनर और बासलाहियत नौजवानों के लिए एग्री लोन और मुख्तलिफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के जरिए रोजगार के मौके पैदा करके हुकूमत न सिर्फ उनके लिए बल्कि दूसरों के लिए रोजगार की राहें खोल रही है. आज के एपिसोड में जानते हैं मुख्तलिफ एग्री एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के बारे में, इनके खद्दोखाल और सब्सिडी के मौके. गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वो हैं जिनमें हुकूमत वक्त समाज के मुख्तलिफ तबकों को बढ़ावा देने के लिए और मुख्तलिफ इकोनॉमिक सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए कुछ इंसेंटिव्स देते हैं, जिनको हम आम तौर पे सब्सिडी कहते हैं. कहीं पे वो अपफ्रंट सब्सिडी देते हैं, पहले सब्सिडी देते हैं लोन लेने से पहले अगर लोन लेना हो तो, कहीं पे बाद में सब्सिडी, जिसको हम बैक एंडेड सब्सिडी कहते हैं. और सूद की शरह में एक रिलैक्सेशन देते हैं या थोड़ा बोझ उठाती है गवर्नमेंट, जिसको हम आम लफ्जों में इंटरेस्ट सबवेंशन कहते हैं. नौजवानों को ये फायदे मिलते हैं, एक तो रोजगार के मौके मिलते हैं जब भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम कोई होती है, और उसमें जो इंसेंटिव्स होते हैं उससे एक मदद मिलती है नौजवान को. दूसरा, उन सेक्टर्स में जहां फोकस होता है गवर्नमेंट का, उनमें मजमूई तौर पे तरक्की मिलती है, बढ़ावा होता है ओवरऑल बिजनेस उसमें, जिससे ओवरऑल मुल्क की तरक्की में पजीराई होती है. जो इस वक्त गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं वो KCC है, बहुत मशहूर स्कीम है. होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम एक स्कीम है जिसमें 105 एक्टिविटीज़ को कवर किया गया है. उन स्कीम्स में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, कहीं पे 10%, कहीं पे 50% और 80% तक भी जाती है. इसी के साथ साथ MSME सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर के लिए जैसे PMEGP हमारे स्टेट में एक और उसी तर्ज की स्कीम है जिसको JKREGP कहते हैं. और भी मिशन यूथ की स्कीमें हैं जैसे मुमकिन है, तेजस्वनी है. 4 स्कीमें जो खुसूसी तौर लाई गई हैं ताकि नौजवानों को रोजगार के मौके मिले. ऐसी स्कीम्स बहुत सारी हैं. ये सिर्फ एक कारोबारी के लिए नहीं है, बल्कि शुरुआत इनकी एक स्टूडेंट से होती है. जहां एक स्टूडेंट अगर एक एजुकेशन लोन हासिल करना चाहता है और उस एजुकेशन लोन में जो उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है उस पे उनको
सब्सिडी मिलेगी, वो इंटरेस्ट उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिएम्बर्स करेगी, जिसमें खास शर्त यह है कि उन्हें ऐसा होना चाहिए कि ये स्टडी विद इन इंडिया कर रहे होने चाहिए और उनकी जो सालाना फैमिली की आमदनी है वो 4.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम प्रधानमंत्री स्वनिधि की बात करेंगे तो इस स्कीम के तहत जो हमारे स्ट्रीट वेंडर भाई हैं, अगर वो लोन हासिल करते हैं, उन्हें ये लोन 10,000 रुपए से शुरू होकर आज की डेट में 50,000 रुपए तक जाता है और इसमें इनको 7% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है। जो ऐसे काम करते हैं जिसमें जदी बूदी उनका जो बैकग्राउंड होगा उस काम के साथ जुड़े हुए होंगे, जैसे ब्लैक स्मिथ होंगे, जैसे कारपेंटर होंगे, उनके लिए एक नई स्कीम आई है PM विश्वकर्मा स्कीम। अगर मैं उसमें वो अप्लाई करते हैं तो उन्हें ये लोन बिल्कुल और बिल्कुल सिर्फ 5% पे मिलता है और जो इसमें बकाया इंटरेस्ट जो बैंकों को जाना होता है वो इन लोगों के बदले, इन एप्लीकेंट्स के बदले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन बैंक्स को फराहम करता है। अगर कोई बड़ा यूनिट खोलना चाहे, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में हो या MSME सेक्टर में हो, काफ़ी सारी स्कीम्स ऐसी हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ MSME की PMEGP स्कीम है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की PMFME स्कीम है, जैसे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की JKREGP स्कीम है। इसी तरीके से ऐसी स्कीम्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट आपको सिर्फ इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं दे रही है, यहाँ पे आपको इन स्कीम्स में आपको कैपिटल सब्सिडी मिलती है। ऐसे लोन में जहाँ आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट करीब 10 लाख के होगा तो आपका अगर सब्सिडी 3.5 लाख रुपए आती है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3.5 लाख में 1 लाख रुपए और मिला के 4.5 लाख रुपए आपका कंट्रीब्यूशन बन जाता है और 5.5 लाख रुपए पे ही सिर्फ आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और वही अमाउंट सिर्फ आपको रिपे करना पड़ेगा। अगर काश्तकारों की बात करते हैं तो KCC लोन एक बेहतरीन लोन है जिसकी सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि ये लोन आपको सिर्फ 7% पे मिलता है 3 लाख रुपए में, और अगर आप वक्त पे इस लोन को अदा करते हैं तो आपको एक प्रॉम्प्ट रिपेयर का खिताब दिया जाता है और उसके एवज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस KCC अकाउंट होल्डर को 3% का एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन फराहम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ इंटरवेंशंस लाई, कुछ स्कीम्स लाई, जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करते हैं। उस फंड के तहत क्या किया जाता है, कहते हैं कि लोगों को लोन दीजिए ताकि वो कोल्ड स्टोरेज खड़े कर पाएं, सिलोज खड़े कर पाएं या ऐसे कुछ प्रोसेसिंग यूनिट्स खड़े कर पाएं जहां पे ये जो एग्रीकल्चर पैदाइश है इसको प्रोसेस करके किसी चीज में कन्वर्ट किया जा सकता है ताकि ये जाया ना हो जाए। इस स्कीम में आपको 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है 2 करोड़ रुपए तक के लोन में, और अगर आप वो लोन हासिल करते हैं और आपका ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के पैरामीटर्स के हिसाब से बराबर बैठता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3% आपको वापस अदा करती है, जिसका ये मतलब है कि कुल मिलाकर ये लोन हमें सिर्फ 6% पे पड़ता है। और इसकी एक और खूबसूरत बात यह है कि ऐसे लोन के लिए आपको किसी भी किस्म की कोलैटरल सिक्योरिटी की भी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको CGTMSE कवर भी मिलता है और CGTMSE कवर में जितना भी फीस CGTMSE ट्रस्ट लेता है वो फी जब आप अदा करते हैं उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक के थ्रू आपको वो फीस भी रिएम्बर्स करता है। अगर हम बात करते हैं मिशन यूथ स्कीम्स की, इसमें मैं खासतौर से बात करूंगा तेजस्विनी के बारे में। तेजस्विनी स्कीम हमारी मस्तूरात वुमेन फोक के लिए है। इसमें वो किसी भी किस्म का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उस बिजनेस स्टार्ट करने में उनमें 5 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट कॉस्ट अवेलेबल है, जिसमें उन्हें पहला फायदा ये है कि अप फ्रंट उनको 50,000 रुपए गवर्नमेंट देती है, जो उनको अदरवाइज अपनी जेब से कारोबार स्टार्ट करने के लिए 10% का मार्जिन देना होता है। मॉरिटोरियम खत्म होते ही ये 50,000 रुपए जो है वो आपके लोन की तरह किस्त के तौर पे अदा किया जाएगा, और इसके साथ साथ जो भी इंटरेस्ट आपको लगता है उस इंटरेस्ट को जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट रिएम्बर्स करती है टू द मैक्सिमम ऑफ 60,000 रुपीज। अगर हम मुमकिन की बात करते हैं, ये मुमकिन स्कीम इसलिए बनाई गई है कि जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको चलाने के लिए इसमें जो इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस होता है उस पे 10% या ज्यादा से ज्यादा 80,000 रुपए का डिस्काउंट आपको वो कंपनी फराहम करती है जिस कंपनी से वो आप लेते हैं। मिशन यूथ जितना भी आपका लोन होगा, जितना भी आपकी गाड़ी का प्राइस होगा, उसका 10% आपको मार्जिन मनी दे देता है, मैक्सिमम 80,000 रुपए। इसके अलावा एक और स्कीम है स्परिंग एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव जो मिशन यूथ में है।
जिसमें 20 लाख तक के प्रोजेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। MSME यूनिट खड़ा करना हो, किसी भी किस्म का यूनिट आपको जो शुरू करना हो, इस स्कीम की सबसे खूबसूरत पहली बात यह है कि प्रमोटर को 10% मार्जिन देना होता है बैंक की तरफ, उसमें से 50% मार्जिन जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट बेयर करेगी। उसके बाद जितना भी इंटरेस्ट आपके लोन पे 5 साल तक लगेगा वो आपको जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट रिएम्बर्स करेगी, लेकिन उसका जो मैक्सिमम कैप होगा वो 2 लाख रुपए तक का होगा। मेरी नौजवान भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि अगर उनमें कैपेसिटी है, अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं और उस बिजनेस को कामयाब बनाना चाहते हैं और उनके दिल में ये ख्वाहिश है कि वो एक एम्प्लॉयर बने और अपने साथ साथ औरों को भी रोज़गार फराहम करें, तो जितनी भी ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, इनमें जो ये सब्सिडी होती है या इंटरेस्ट सबवेंशन होता है, इन स्कीमों का फ़ायदा उठाएं और अपने कारोबार को आगे बढ़ाएं। आज के एपिसोड में हमने जाना सरकार द्वारा चलाई जा रही और बैंकों के जरिए अमलाई जा रही मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में। अगली कड़ी में एक और विषय पर बात करेंगे। जब तक के लिए जुड़े रहिए हमारी 24/7 बैंकिंग सर्विसेज के जरिए और किसी भी जानकारी के लिए डायल करें हमारा टोल फ्री नंबर 1800-890-2122। किसी भी डिजिटल फ्रॉड की इत्तला नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत दे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा अयान सज्जाद, जो कि एक नौजवान सिंगर। तो मैं चाहूँगा कि एक हिंदी सॉन्ग आप क्योंकि कश्मीरी में हमने आपको वीडियोस में भी देखा है, हिंदी हमने कभी सुना नहीं है, बिल्कुल, और कुछ हमारे कमेंट्स भी है, उनकी भी यही चाहत है कि आप हिंदी सॉन्ग सुनाइए कुछ। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा परवर, शुक्रिया दो जहां की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आप उस दौर में उस स्टेज पे है जहाँ एजुकेशन और जहाँ आपका एक पैशन, ये दोनों है। बहुत लोगों का बहुत कुछ पैशन होता है, किसी का गिटार, किसी का कुछ है, किसी का हाइकिंग है, किसी का कुछ है, लेकिन इसको मैं चाहूँगा कि आपकी मैसेज क्या होगी इसमें। और दूसरा सवाल इसके साथ मैं जोड़ूंगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो बच्चे हैं जो बदकिस्मती के साथ ड्रग एब्यूज़ और इन चीज़ों के साथ भी कनेक्ट हुए। मैं आपकी तरफ से ये मैसेज चाहूँगा लोगों को कि वो सुने, सिंगिंग या कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स वगैरह हो, ये कैसे हेल्प कर सकता है हमें इन सब चीज़ों से दूर रहने में। दोनों सवाल आपके। मैं तो ये मानता हूँ कि एक इंसान के लिए एजुकेशन प्राइमरी फोकस होना चाहिए। ठीक। जैसा कि आपने कहा, एजुकेशन इज़ नेसेसरी, और उसके साथ साथ जो पैशन है एक इंसान का वो तो ज़रूरी। मैं चाहता हूँ ये कि हर कोई इंसान अपने पैशन को ज़रूर फॉलो करे अलॉन्ग विद देयर एजुकेशन। अलॉन्ग विद वो एक बेसिक चीज़ है, ये एक बेसिक चीज़ है, वो लाइवली रखती है पैशन। एजुकेशन एक अच्छी जिंदगी देता है। हाँ, बिल्कुल। जैसा कि एक परसेप्शन बना हुआ है अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में कि एक आर्टिस्ट, एक सिंगर या कोई एक इंसान जो कि अपने पैशन को फॉलो करता है वो पढ़ाई में अच्छा नहीं होता या वो पढ़ाई में कुछ नहीं कर पाता। बट डेफिनेटली दिस इज रॉन्ग। और जो एक इंसान अपने पैशन को फॉलो करता है, आई बिलीव वो एक सबसे एजुकेटेड इंसान वही है जो कि वो करता है जो कि उसकी खुशी है, और वो करता है और उसी को अपना लाइवलीहुड बनाता है। ठीक है,
शुक्रिया। और जो मेरा दूसरा था कि ऐसे आर्ट कल्चर से, ड्रग अब्यूज से दूर, ड्रग अब्यूज से दूर रहते हैं इंसान, क्योंकि ड्रग अब्यूज और ऐसी बुरी चीज़ों में इंसान तभी जाता है, एडिक्शंस में इंसान तभी जाता है जबकि वो आइडल बैठा हुआ है, दिमाग खाली रहता है। बिल्कुल, जब उसका दिमाग खाली रहता है। बट डेफिनेटली जब उसके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें होंगी तो केयर अबाउट काफ़ी सारी चीज़ों की फिक्र होगी उसके दिमाग में, तो वो डेफिनेटली ऐसी चीज़ों में मुलव्वस नहीं होगा। बहुत अच्छा गाते हैं। हम ये दुआ करेंगे कि आपको बहुत कामयाबी मिले, अल्लाह ताला किरणों तक कामयाब, और आप ना सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, अभी बहुत इश्क के इम्तिहान है, अभी बहुत आसमां आपको छूने हैं, बहुत परवाजें लेनी है। दुआ हमारी साथ साथ आप बहुत अच्छी बातें भी करते हो, आपने नसीहत आमोज बातें भी की, उन सब दोनों चीज़ों के लिए हम पूरी गुड मॉर्निंग JNK की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। और आपके जो फादर है डॉक्टर सज्जाद हुसैन साहब, उनके भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है। उम्मीद है नाज़रीन जो आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आज के प्रोग्राम में हमें दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन इसके साथ मैं ऐड करना चाहूंगा कि हिंदी फीचर फिल्म देखना ना भूलिए आप, जो रोज आप सैटरडे को 7:30 बजे यहाँ से शुरू होती है। माफी आज ये होता तो क्या होता, जिसमें इरफान खान, परेश रावल और जिमी शेरगिल को आप देख सकते हैं। 7:30 नहीं भूलिए, ऑन कीजिए DD कल्चर चैनल और मुनाज़त तो गर्ज ये है हमारा कि हमसे डिस्कनेक्ट ना होइए, सुबह प्रोग्राम देखिए, शाम को मूवी भी देखिए, लेकिन आज के प्रोग्राम में हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।